डोंट टेल मी दैट अब तक आप एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर की अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके माइंड के अलग अलग 3 कंपार्टमेंट में इन एंट्रीज को सेट किए हुए थे। एंड इफ यू आर डूइंग सो, यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज देर आर सर्टन बेसिक एंट्रीज जो ये तीनों चैप्टर में कॉमन रहती है। एंड इन टूडेज सेशन वी विल बी क्रैकिंग ऑल दोज बेसिक एंट्रीज। एंड एक बार ये बेसिक एंट्रीज आपके माइंड के एक ही कंपार्टमेंट में सेट कर दो and you will be more than half sorted out with all the 3 chapters. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Let's crack some of the common entries which will remain common at the time of admission, retirement and death of a partner. Before we proceed for the entries, you should know that आपको question किस type का आएगा. So as a part of question of any of this topic, you will be having one balance sheet given. And you will be having certain adjustment entries given. Based on the given balance sheet and adjustment entries, you will be preparing revaluation account, partners capital account, cash and bank account and one new balance sheet. So to prepare all these things, what type of entries are there which will remain common in all these 3 topics? So let's discuss them one by one. The first is transferring partners capital to capital accounts. Now आपको partners के capital balance sheet में दिए होंगे. You should be knowing that partners के capital appears on liability part of balance sheet. Now remember one thing that आपको balance sheet में से partners के capital में या balance sheet में से cash और bank account में जो भी कुछ transfer करना है, वो सारी transfer cross entries के form में होगी. Like if you are taking partners capital from the left hand side of your balance sheet, these capital amounts will go to right hand side of partners capital. See, it will be somewhat like this. If you are having this as partners capital account A, B, A and B, अगर कैपिटल यहां से लेते हो तो from this part it will go cross center to this part. So partners capital हम left hand side से liability से pick करेंगे and we will drop it to the right hand side, the credit side of partners capital as by balance brought down, and whatever balances are given you will place the balances here. If you are doing admission of a partner का sum, आपको 2 partners के balances दिए होंगे जो existing partners होंगे. If you are doing retirement of a partner का sum या death of a partner का sum, तो आपको तीनों partner की capital की balances दी होगी. जितने भी partners के capital की balances दी है उनको आप capital account में transfer करोगे. Once the balances of partners capital are transferred, then you will be preparing cash or bank account. See, अगर question में बोला है कि new balance sheet बनाओ तो फिर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने का नहीं भी बोला, स्टिल वी विल बी मेकिंग कैश और बैंक अकाउंट. एंड सो लाइक दैट यू हैव कैश और बैंक अकाउंट. वंस यू हैव ट्रांसफर्ड कैपिटल की बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स, यू विल बी ट्रांसफरिंग कैश एंड बैंक अकाउंट की बैलेंस इन कैश और बैंक अकाउंट, वॉट एवर इज गिवन. कैश और बैंक की बैलेंस विल अपीयर ऑन दी एसेट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. एसेट में से जो भी आइटम पिक करते हो, अगेन इट विल बी क्रॉस एंटर्ड. आपने बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड से आइटम पिक की, सो यू विल बी ड्रॉपिंग दैट बैलेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट. अगर ये आपका कैश अकाउंट होता तो फ्रॉम दिस साइड ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस जो ट्रांसफर होती कैश अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर होती. So cash or bank की balance you will transfer on debit side of cash account as again to balance brought down. You took it from right hand side of balance sheet and you dropped it to the left hand side of cash account. Thus आपने cross entry करी. Then third is distribution of piggy banks. Now partners ने अपने profit में से कुछ पोर्शंस पिगी बैंक्स में भर के रखे होंगे. पिगी बैंक्स इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंड्स. बिफोर द न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड टू द फर्म,
वो पिगी बैंक्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे before any of the existing partner is leaving the firm, maybe by retirement, maybe by death. तो वो अगेन पार्टनर्स अपने आप में पिगी बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. So whether you are talking about admission, whether you are talking about retirement or death of a partner, every time पिगी बैंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. पिगी बैंक्स किस किस आइटम्स को बोलेंगे? You can have general reserve as one of the piggy bank. You can have P&L account appearing on liability part as one of the piggy bank. You can have reserve fund, reserve, accumulated profit. All these are the piggy banks that will appear on the liabilities part of the balance sheet. And you can have some piggy banks appearing on asset part as well. It can be goodwill. It can be again a P&L account over here. It can be advertisement suspense account. It can be deferred advertisement expenditure account. So generally these are the piggy banks जो आपकी बैलेंस शीट में अपीयर करेगी. Now piggy bank के डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम फंडा रहेगा. You will be making क्रॉस एंट्रीज. अगर आप इनमें से कोई भी पिगी बैंक लाइबिलिटी में से पिक करते हो, then that piggy bank from liability part transfer to the credit part of partners capital. Thus cross entry होगी from left hand side to right hand side of partners capital. अब किन partners में piggy bank distribute होगी? Piggy banks will always get distributed among existing partners in their existing ratio. अब आप existing partners किसको बोलोगे? जिन पार्टनर्स के कैपिटल की बैलेंसेस आपने ट्रांसफर करी वो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे. इन केस ऑफ एडमिशन दो ही पार्टनर के कैपिटल की बैलेंसेस ट्रांसफर करी, सो वो दो ही आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे. पिगी बैंक्स उन दो ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, आप बैलेंसेस तीनों पार्टनर में ट्रांसफर करोगे बिकॉज कैपिटल की बैलेंसेस तीनों में ट्रांसफर करी. ऑल थ्री ऑफ देम विल बी योर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड दस जो भी पिगी बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो एग्जिस्टिंग तीनों पार्टनर्स में होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ इनमें से कोई भी पिगी बैंक अगर आप लाइबिलिटी में से पिक करते हो, इट विल गो क्रॉस सेंटर टू द क्रेडिट पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. सपोज आई एम टेकिंग जनरल रिजर्व पिगी बैंक बिकॉज मैंने ये दो पार्टनर्स में ही बैलेंस लिखी है. जनरल रिजर्व नाम की पिगी बैंक ये दो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी. अगर मैं रिटायरमेंट या डेथ का सम कर रही होती तो जनरल रिजर्व नाम की पिगी बैंक ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होती. सो लाइबिलिटी वाली पिगी बैंक कोई भी लेते हो, इट विल गो क्रॉस सेंटर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द क्रेडिट पार्ट. अगर आप गुडविल, P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी पिगी बैंक एसेट साइड से पिक करते हो, देन दैट एसेट साइड वाली पिगी बैंक विल गो क्रॉस सेंटर्ड ऑन द डेबिट पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. सो अगर इफ आई एम ट्रांसफरिंग गुडविल, एसेट वाली गुडविल विल गो क्रॉस सेंटर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल्स डेबिट साइड. अगेन एसेट वाली पिगी बैंक भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किसको बोलेंगे? जिनके कैपिटल्स की बैलेंसेस ब्रॉट डाउन की. एडमिशन के केस में दो, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर तीनों होंगे. जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट्स में द पिगी बैंक्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. So even this is sorted out, which will be common whether you are doing admission, retirement or death का chapter. Then comes the revaluation of assets and liabilities. जिस भी दिन कोई पार्टनर न्यूली एडमिट होता है या जिस भी दिन कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, at that time आप assets and liabilities को रीवैल्यू करोगे, उनको फ्रेशन अप वैल्यू से शो करोगे. मे बी कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी उस दिन, मे बी कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हुई होगी, मे बी सम लाइबिलिटीज माइट हैव इंक्रीज्ड, मे बी सम ऑफ देम माइट हैव डिक्रीज्ड. तो उनका इंक्रीज एंड डिक्रीज शो करने के लिए यू विल बी प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट
which will show increase and decrease in value of assets. Now this revaluation account will be nominal in nature. Nominal account says that all the expenses and losses will be debited, all the incomes and gains will be credited. That is what the logic says. We can remember in a way that जो भी कुछ अच्छी बात हो रही है वो अच्छी बात रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी, और जो भी कुछ आपके फर्म के साथ बुरा हो रहा है, बुरा होने वाली सारी चीजें आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगी। बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? आपका 5 लाख का मशीन अब डेप्रीशिएट हो गया, 4 लाख हो गया। 5 की वैल्यू का मशीन बेचारा 4 का हो गया, 1 लाख का लॉस हुआ, बुरी बात हुई। वो बुरी बात यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी लैंड 20 लाख की थी, अभी बिकॉज ऑफ एनी रीजन 25 की हो गई, अप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज हो गई। लैंड नाम का एसेट अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो तो अच्छी बात है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, अच्छी बात। यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपके क्रेडिटर्स पहले 50,000 के थे, अभी उन क्रेडिटर्स में से 5,000 के क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो गए, आपको पे नहीं करने। आपकी लाइबिलिटी 5,000 से रिड्यूस हो गई, लाइबिलिटी अब कम पे करने पड़ेगी, वो तो अच्छी बात है। एंड thus दैट अच्छी बात विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी बिल्स पेएबल जो पहले 10,000 थी, अभी वो 12,000 हो गई, अभी आपको 2,000 पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ओ, ये तो बुरी बात है। एंड thus बुरी बात विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। So all the things which are good for your firm will have credit entries in revaluation account, and all those things which are bad for your firm will all be recorded on debit part of revaluation account. And like that, every chapter, whether you are doing admission, retirement or death of a partner, हर एक चैप्टर के सम में आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का एडजस्टमेंट 101% आएगा। एंड दैट एडजस्टमेंट विल हैव इफेक्ट्स समवॉट लाइक दिस। डिवाइड द रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट्स इनटू अच्छी बात एंड बुरी बात, एंड देन गो ऑन रिकॉर्डिंग अच्छी बात ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑल बुरी बात ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड यू आर सॉर्टेड आउट। वंस आपने सारी अच्छी और बुरी बातें रिकॉर्ड कर ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एंट्रीज कर ली, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन को जब भी क्लोज करोगे, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड को पहले टोटल करोगे, दूसरी साइड जाके गैप फाइंड करोगे। दिस इज व्हाट यू माइट हैव लर्न्ड व्हाइल क्लोजिंग द लेजर। सपोज गैप यहाँ पे अपीयर कर रहा है ऑन क्रेडिट पार्ट। Now that gap of revaluation account will get transferred to existing partners in their existing ratio, and the revaluation account will get closed. Again existing partners किसको बोलेंगे? पिगी बैंक वाले पार्टनर्स जो थे, सेम पार्टनर्स को ये भी मिलेगा। पिगी बैंक वाले कौन से पार्टनर्स थे? वो पार्टनर्स जिनकी बैलेंसेस हमने ब्रॉट डाउन की थी। एडमिशन के केस में 2 partners, then this gap also will get distributed among 2. In case अगर आप रिटायरमेंट कर रहे होते तो एग्जिस्टिंग पार्टनर तीनों होते, तो in that case this gap would have got transferred to all 3 of them in their existing ratio. Again the gap will have cross entry, from here it will get transferred to debit of partners capital, and you will write ये amount कहाँ से लाए? You got that amount from revaluation account. And like that, अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का बोला है, देन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा राइट होता है तो आउट ऑफ 6 you will be getting 2 marks here. So 2 marks are well sorted. Moving on next, capital adjustment. Whether you are doing admission का sum या retirement का sum, you will be having one adjustment to adjust the capitals of the partner.
नाउ रिमेंबर दैट पार्टनर्स के कैपिटल को आप एडजस्ट करोगे हर बार वर्किंग नोट करके। वर्किंग नोट में जो भी पार्टनर्स के कैपिटल की बैलेंसेस आती है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की बैलेंसेस वर्किंग नोट में आई, those balances will be the final closing balance of the partners. And जब आप कैपिटल एडजस्ट करोगे, remember that in all the cases, whether admission, retirement or death, in all the cases capital will always be adjusted in their new ratio. And the last thing which will be common will be about new goodwill of the firm. अब जब पार्टनर का एडमिशन होगा, आने वाला पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो एडमिशन के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जाने वाला पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके जाएगा। उसको गुडविल देगा कौन? कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर गुडविल कैसे देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। सो जब भी कभी आप एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का सम कर रहे हो, यू विल हैव गुडविल एलिमेंट फॉर श्योर। एंड गुडविल एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो विल हेल्प यू आउट। इन केस इफ आप एडमिशन का सम कर रहे हो, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होगा। एंड इन केस अगर आप रिटायरमेंट या डेथ का सम कर रहे हो, तो फिर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन गेनिंग रेशियो से होगा। सो ऑलमोस्ट 70 to 80% of sums of admission, retirement and death of a partner will have all these common entries. जहां पे भी डिफरेंस होगा, दैट विल बी डिफरेंस इन मेकिंग एंट्रीज फॉर गुडविल ओनली। बाकी ये सब कुछ 1 to 5 नंबर, वॉट एवर इज मेंशन, एवरीथिंग विल रिमेन कॉमन अमंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. So if you are able to master these entries, then you are more than half sorted out for all 3 chapters together. So I hope whatever we discussed today is very much clear to you. In the next session, we will be starting with specifically a sum of admission of a partner. Until then, stay tuned and goodbye.